Okay, so a very welcome to all of you students. Now, today we are going on to move on to the next type, that is type 5, and that is differentiation of parametric functions. Okay, we have finished off with differentiation of implicit functions. Now we are going to see differentiation of parametric functions. अभी exactly parametric functions होते कैसे हैं और what are parametric functions? Write down in your notebook. Let us start. Put up this heading. Now write down x is equal to, write down, if x is equal to of t and y is equal to g of t are functions of t. What I am telling, I am explaining you the meaning of parametric functions. Parametric functions और पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में हम लिख रहे हैं. यू कैन राइट डाउन दिस वे, पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिख लो आप. नाउ इफ x इज इक्वल टू f of t एंड y इज इक्वल टू g of t, अगर x कोई t का फंक्शन है और y कोई t का फंक्शन है, इट इज रिटन दिस वे, x इज इक्वल टू f of t एंड y इज इक्वल टू g of t are functions of t. ठीक है, इसमें यू ऑब्जर्व व्हाट इज दिस, ये जो x और y होता है, this x and y they are called as the variable. लिख लो, x and y they are called as the variables. तो x अगर कोई फंक्शन ऑफ t है और y भी एक फंक्शन ऑफ t है. अब यहाँ पे जो t नोटेशन यूज किया है, this t is also nothing but a variable. ये जो स्मॉल टी यहाँ पे नोटेशन यूज किया है, दिस स्मॉल टी इज ऑल्सो नथिंग बट एन वेरिएबल. बट जनरली एक्स एंड वाई को हम वेरिएबल्स बोलते हैं. तो टी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग टी एज अ वेरिएबल, हम यहाँ पे टी को बोलेंगे टी इज अ पैरामीटर. टी इज अ पैरामीटर. मीनिंग वही है, आप चाहे वेरिएबल बोलो चाहे पैरामीटर बोलो, मीनिंग वही है. ठीक है, तो इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y is equal to g of t, where x and y are called as the variables and t is also a variable. अब वापस उसको वेरिएबल नाम देने के जगह पे उसने पैरामीटर नाम दिया है. ठीक है, दैट इज ओनली द डिफरेंस. बट पैरामीटर और वेरिएबल एक ही चीज होती है. जब t का वैल्यू चेंज होगा, x और y का वैल्यू चेंज हो जाएगा. एज द पैरामीटर चेंजेस, द वैल्यू ऑफ x and y also changes. मीन्स यहाँ पे क्या है, x एंड y आर डिपेंडेंट ऑन t. फंक्शन x और y है, वो t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और t को हमने एक नया नाम दे दिया है, उसको बोला है हमने पैरामीटर. तो एम आई क्लियर हाउ आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस, पैरामीटर कैसे होता है? एम आई क्लियर अबाउट दिस एक्सप्लेनेशन? ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी के फॉर्म के होते हैं. ओके, नाउ देयर इज वन थियरम. एज आई सेड, थियरम अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसका प्रूफ हम बाद में देख लेंगे. ओके, so just write down the theorem, that is theorem number 3. Theorem number 3. Write down in your notebook. All the theorems we are going to prove it, but we'll do it at the end of the topic. उसका जो proof वाला part है वो हम बाद में करेंगे. Okay, write down theorem number 3 का statement लिख लो आप. Don't worry, I'll explain everything in detail. Okay, write down if x is equal to f of t and y is equal to g of t, x is equal to f of t and y is equal to g of t are differentiable functions of t, are differentiable functions of parameter t. ऐसे लिखो आप, are differentiable functions of parameter t.
ठीक है, आगे लिखो, so that y is a differentiable function of x, so that y is a differentiable function of x. Y is a differentiable function of x. Then dy by dx is equal to, write down, dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. ऐसा लिख लो आप. Then dy by dx is nothing but equal to dy by dt upon dx by dt, where dx by dt should not be equal to 0. ये स्टेटमेंट है. इफ x इज इक्वल टू f of t, मतलब क्या है, x एक फंक्शन है t का, y भी एक फंक्शन है एक t का, and it is a differentiable function of parameter t, so that y is a differentiable function of x. So if we want to find out dy by dx, it is given by the formula dy by dt upon dx by dt. अगर हमें dy by dx फाइंड करना है, तो अभी तक हम क्या करते थे, to find out dy by dx we were differentiating directly with respect to x, but now onwards we will not be able to differentiate directly with respect to x. So we have to use this rule of parametric functions. ये डिफरेंशिएशन का रूल यूज करना पड़ेगा. dy by dx is dy by dt upon dx by dt. ठीक है ना. तो विल बी टेकिंग डाउन द एग्जांपल. अभी से फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल, छोटा सा ट्यूटोरियल. एग्जांपल नंबर 1, जस्ट हैव अ लुक, पे अटेंशन. नाउ सपोज इफ x इज इक्वल टू sin t दिया है, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू cos t दिया है. नाउ as you observe, x is a function of t. So not write down this example. We'll do it when we solve the problem itself directly. X is a function of t and y is also a function of t. इसमें dy by dx directly नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स. तो dy by dx कैसे निकलेगा? Since x is a function of t and y is also a function of t, will differentiate them with respect to t. चलो लिख लो, start writing down. लिखो example 1. एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, then we'll move on to the यूनिट के प्रॉब्लम्स. राइट डाउन एग्जांपल 1. एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेता हूँ आपके लिए. चलो लिखो, इफ x इज इक्वल टू sin t दिया है एंड y इज इक्वल टू cos t दिया है, एंड इट इज गिवन फाइंड dy by dx. dy by dx हमें निकालना है. चलो सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल. नाउ व्हाट विल डू, वी विल कंसीडर x एंड y ऑलरेडी दिया हुआ है. Now we'll differentiate x with respect to t. Write down differentiating. ऐसा देखो आप, differentiating ठीक है, x and y with respect to parameter t. t पैरामीटर है, x एक t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है. तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रिस्पेक्ट टू t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव लेना है, बट विथ रिस्पेक्ट टू t. तो राइट डाउन क्या मिलेगा, d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ sin t. ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वालिटी वी आर गोइंग टू टेक d बाई dt, एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, d बाई dt ऑफ y is equal to d by dt of cos t. x and y t के फंक्शंस है, तो हम x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t ले लेंगे. So write down therefore dx by dt is equal to, now what is d by dt of sin t? So d by dt of sin t is nothing but cos t. Why? We know that d by dx of sin x is 6. So d by dt of sin t will be cos t. फॉर्मूले सारे सेम है,
खाली इतना ही डिफरेंस है कि वी आर नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड dy by dt is nothing but equal to, so what will be d by dt of cos t? So d by dt of cos t will be nothing but नेगेटिव साइन टी। देखो डेरिवेटिव के फॉर्मूले चेंज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है। तो वी हैव गॉट dx by dt एंड dy by dt, बट हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वी वांट टू फाइंड आउट dy by dx। ठीक है, तो राइट डाउन ऑन द नेक्स्ट लाइन, बट dy by dx is nothing but equal to, अब देखो रूल क्या बोलता है, dy by dx is nothing but equal to dy by dt, it is dy by dt upon dx by dt मिलेगा। दिस इज व्हाट द रूल सेज। अगर हमें dy by dx फाइंड करना है तो वी विल हैव टू डिवाइड देम, dy by dt upon dx by dt को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। So therefore dy by dx is nothing but equal to, now check out what is dy by dt. So dy by dt is minus sin t, dy by dt is nothing but minus sin t upon dx by dt, ये dx by dt है, तो dx by dt is nothing but cos t and this is further and nothing but equal to minus tan t। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा जो dy by dx है that is nothing but minus tan t। So see what we have done, what does the rule says? If x is a function of t, y is a function of t, a differentiable function of t, where what is t? T is a parameter. So if we want to find out dy by dx, so it is nothing but dy by dt upon dx by dt होता है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, x और y t के फंक्शंस थे, we have differentiated both x and y with respect to t, dx by dt dy by dt निकाल लिया, फिर हमने दोनों को डिवाइड किया तो वहां से हमें dy by dx मिल गया। Now just give me the clearance, is this procedure understood to all? Yes, sir. तो प्लीज रिमेंबर फॉर्मूलेज सारे सेम है, जो डेरिवेटिव के कंपोजिट फंक्शंस हो, इनवर्स फंक्शंस हो, ऑल फॉर्मूलेज आर सेम, ओनली देयर पैरामीटर इज गोइंग टू चेंज। हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टी हमें डिफरेंशिएट करना पड़े, हो सकता है थीटा भी पैरामीटर हो सकता है। ठीक है ना, चलो आप ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो, then I will give you some other parameters also which you can note down for your reference। ठीक है, चलो तो ये एग्जांपल 1 में रब कर देता हूँ। नाउ आई विल गिव यू सम नोट आल्सो टू बी नोटेड। ओके, एक पॉइंट लिख के देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड आफ्टर दिस। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये जस्ट एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया था आपके रेफरेंस के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर बेटर। चलिए लिख लीजिए आप, इसके बाद नोट, आफ्टर दैट प्रॉब्लम गेट्स ओवर राइट डाउन वन नोट। ओके, अभी आप लिख लो, इफ अभी t इज अ पैरामीटर होगा तो क्या करना है, मैंने दिया है, इफ थीटा इज अ पैरामीटर, ये लिख लो आप, इफ थीटा इज अ पैरामीटर then dy by dx is nothing but equal to dy by d theta upon dx by d theta। अगर थीटा पैरामीटर दिया है तो dy by d theta upon dx by d theta आएगा। देखो पैरामीटर मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एज आई सेड पैरामीटर मींस इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल ओनली, उसको खाली अलग से नाम दे दिया गया है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो थीटा पैरामीटर हो सकता है, टी पैरामीटर हो सकता है, अल्फा पैरामीटर हो सकता है, अल्फा बीटा गामा, एम भी पैरामीटर हो सकता है। देयर आर वन और टू एग्जांपल्स ऑन एम आल्सो। इफ एम इज अ पैरामीटर, इफ एम इज अ पैरामीटर, बट जनरली मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में टी और थीटा दो ही पैरामीटर्स यूज होते हैं, बाकी तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। इफ एम इज अ पैरामीटर, अगर m पैरामीटर है
then our dy by dx will be nothing but dy by dm upon dx by dm. ठीक है, जो भी पैरामीटर होता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट वी डिफरेंशिएट. अगर t पैरामीटर है तो हम t से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर थीटा पैरामीटर है तो हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर m पैरामीटर है तो m से डिफरेंशिएट करेंगे. तो वॉट एवर पैरामीटर इज देयर वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट. एम आई क्लियर अबाउट दिस एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रूल खाली हमें याद रखना है. थोड़ा जरा यहाँ पे लिख लेता हूँ. इफ m इज अ पैरामीटर, डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज है वो सब सेम है, वेदर इट्स एन इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, सिंपल फंक्शन, वही सारे फॉर्मूलेज इसके लिए पैरामीटर के लिए भी यूज होने वाले हैं. ओके, चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स. जो यूनिट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेट अस डू सच काइंड ऑफ एग्जांपल्स. ओके, नाउ अंडर दिस टाइप 5 आप ये हेडिंग लिखे, टाइप 5A. यूनिट नंबर 9 is under this heading, and write down find dy by dx if x is equal to a into t square and y is equal to 2a into t. If this example is asked, it will carry 2 marks. Solution. Okay, अभी क्योंकि ये छोटे छोटे फंक्शंस है, हम दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट वी डू जनरली व्हेन वी कंसिडर, जनरली वो जब क्वेश्चन देता है तो पहले x देता है और फिर वो y देता है. हम उल्टा कंसिडर करेंगे. जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस फर्स्ट कंसिडर y एंड देन वी विल कंसिडर x. रीजन आई विल लेट यू नो. अब जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें x y लिया था मैंने, बट नाउ आई विल टेक y फर्स्ट एंड देन x फर्स्ट. आई एक्सप्लेन यू व्हाई सो. ओके, चलो, राइट डाउन सॉल्यूशन. लेट्स कंसिडर, ऐसा लिखो आप, कंसिडर, राइट डाउन, y लिखते हैं पहले. y इज इक्वल टू 2a इंटू टी, और थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लिख लो, एंड x इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर. दोनों हमने एक साथ कंसिडर कर लिया. वी कैन डू वन बाय वन ऑल्सो, यू कैन डू देम बोथ साइमल्टेनियसली ऑल्सो. ओके, अभी आप लिखो ऑन द नेक्स्ट लाइन, डिफरेंशिएटिंग y and x with respect to t. अभी आप पहले x लिखो फिर y लिखो, या पहले y लिखो फिर x लिखो, उससे आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. पहले हम y लिखेंगे. वी प्रेफर राइटिंग डाउन y फर्स्ट एंड देन x. आई टेल यू व्हाई, डोंट वरी. डिफरेंशिएटिंग y एंड x विथ रिस्पेक्ट टू x. तो पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. ओके, तो चलो, राइट ऑन. देयरफॉर व्हाट डू वी डू, d by dt ऑफ y is equal to, now if you observe यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, तो 2a पैरामीटर के बाहर आ जाएगा, ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, एंड इट विल बी d by dt ऑफ t. नाउ इन द क्वेश्चन, एग्जाम में आपको मेंशन्ड रहेगा, एग्जाम में इट विल बी मेंशन्ड वेयर t is a parameter, where t is a parameter, but by chance if it is not mentioned, generally दो ही parameters use होते हैं, t and theta. This will be mentioned in the exam. t is a parameter. Okay, so where were we? Differentiating y and x with respect to t. तो पहले y का डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं. तो we are differentiating with respect to t. तो d by dt लेना है. Please be very careful. गलती से भी हमने यहाँ पे d by dx लिख दिया ना, तो गेम इज ओवर. एग्जामिनर रॉन्ग कर देगा और 0 डाल देगा सीधा. वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर t. t से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम. देयरफॉर, चलो लिखो, देयरफॉर d by dt of y is nothing but dy by dt. अभी 2a कांस्टेंट है, तो d by dt of t is nothing but 1. जैसे d by dx of x 1 होता है, तो d by dt of t भी 1 होगा. I said formulas are all same. So therefore dy by dt is nothing but what? 2a.
तो ये हमें हमारा dy बाई dt मिल गया। अभी हम dx बाई dt फाइंड करते हैं। ओके, चलो राइट डाउन। एंड यहाँ पे तो क्या मिलेगा, d बाई dt ऑफ x इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है ऑपरेटर के बाहर, d बाई dt ऑफ t स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एंड लिखो, देयरफॉर लिखोगे तो भी चलेगा। एंड dx by dt, so what will be dx by dt students? A is a constant, it will remain same. What will be derivative of t square? So derivative of t square will be nothing but 2t। जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेते तो 2x लिखते हैं ना, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t तो 2t लिखेंगे। तो therefore what is dx by dt? So dx by dt is nothing but equal to 2a into t। जनरली पहले कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, नंबर फिर कांस्टेंट और फिर वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल मतलब पैरामीटर। तो सी वी हैव फाउंड आउट dy by dt as well as we have found out dx by dt also। x और y t के फंक्शंस दिए थे और हमें dy by dx निकालना था, पर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, तो विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर वी डिफरेंशिएट। नाउ राइट डाउन, नेक्स्ट आगे लिखो आप। नाउ ऐसा करके लिख सकते हैं हम, नाउ dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt होता है। Write down this part, dy by dx is dy by dt upon dx by dt, therefore dy by dx is further equal to, now what is dy by dt students? So dy by dt is nothing but 2a, dy by dt is nothing but 2a, and dx by dt is nothing but 2a into t। Please check out carefully, dy by dx is dy by dt upon dx by dt, so 2a upon 2a into t, so 2a cancel हो गया, so therefore what is dy by dx students? So dy by dx is nothing but 1 by t। That's it, problem is over, no more further simplification is required after this, problem खत्म हो चुका है। Please make a note of this। Now is this problem understood to everyone? Yes, sir. Okay, very good। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है हमें। एक तो जो भी पैरामीटर है उससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर टी पैरामीटर है तो टी से डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा पैरामीटर है तो थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, अल्फा पैरामीटर है तो अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो राइट नाउ टी वाज द पैरामीटर, so we have differentiated x and y, or you can say y and x with respect to t, and then we have used the rule of parametric differentiation, dy by dx is dy by dt upon dx by dt। अच्छा, अभी आप पूछोगे कि सर आपने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था उसमें पहले आपने x को डिफरेंशिएट किया फिर y को किया, बराबर है? अब इसमें आप पहले y लिख रहे हो फिर x लिख रहे हो, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसका रीजन है, y का डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं तो dy by dt और dx by dt, ऊपर देखो क्या चाहिए अपने को, we want dy by dt in the numerator and dx by dt in the denominator। तो इसलिए पहले dy by dt फाइंड कर दिया फिर dx by dt फाइंड कर लिया, ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन। तो dy by dt ऊपर चाहिए और dx by dt नीचे चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट पहले dx by dt फाइंड करता है फिर dy by dt फाइंड करता है, और जो dx by dt फाइंड करता है ना वो ऊपर रख देता है, dx by dt ऊपर रख देता है और dy by dt का वैल्यू नीचे रख देता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। dy by dx is dy by dt upon dx by dt, that is why first we will write down y and then x। वैसे आप x लिखो फिर y लिखोगे तो भी चलेगा, बट ये ध्यान रखना ऊपर dy by dt है और नीचे dx by dt है। Am I clear with this explanation everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good। चलो, वैसे आप ये फंक्शन वन बाय वन, अगर जब फंक्शन बड़ा है तो हम एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। तो चलो ऐसा एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इज ओवर, आई मीन टू से एग्जांपल 1 इज ओवर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay, just give me a minute। अभी आई एम स्लाइटली चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द प्रॉब्लम्स
ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया यूनिट नंबर 9 का. नाउ यू राइट डाउन एग्जांपल नंबर 5. फिफ्थ एग्जांपल है. ठीक है, राइट डाउन. हेडिंग वही है, हेडिंग वही है, फाइंड dy by dx. अभी आप लिखो x इज इक्वल टू, पहले हमेशा वो x ही देता है, x इज इक्वल टू cos ऑफ log t, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू log ऑफ sin t. और हमें क्या निकालना है, हमें dy by dx निकालना है. ठीक है, नाउ सॉल्यूशन. नाउ विल डू वन बाय वन. अभी दोनों एक साथ नहीं करेंगे. अभी एक प्रॉब्लम में मैंने आपको दोनों एक साथ करके बता दिया y और x का. नाउ लेट अस डू इट इंडिविजुअल, जस्ट फॉर योर रेफरेंस. दोनों कर सकते हो आप, आपकी मर्जी. नाउ लेट अस डू द वर्किंग फॉर y. सॉल्यूशन देखो, कंसीडर, लेट्स फर्स्ट कंसीडर y. तो y is equal to what? तो y is equal to log of sin t. अच्छा, एग्जाम में सपोज ऐसा मेंशन नहीं है कि t इज अ पैरामीटर, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अब दिख रहा है कि कोई दूसरा वेरिएबल है ही नहीं. x and y are the two variables and the another variable which is called as a parameter. So t is a parameter over here. So it's understood even if not written. ठीक है ना? So y is log of sin t. Now what is the parameter? T is a parameter. So we'll differentiate with respect to t. So लिखिए differentiating. Write down differentiating with respect to t. We are going to differentiate with respect to t, student. ठीक है, तो therefore what will happen? d by dt of y is equal to d by dt of log sin t. अच्छा, अब ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का बिगिनिंग है, इसीलिए मैं स्टेप वाइज जाऊंगा. ठीक है, इनिशियली आई विल गो स्टेप वाइज. तो d by dt ले लिया दोनों तरफ. नाउ d by dt of y means it is nothing but dy by dt. Now which formula will we apply? Composite function का log fx. Log fx. So what is derivative of log fx? So it is 1 by fx into f dash of x. But वो फंक्शन x का था, ये फंक्शन x का बिल्कुल भी नहीं है. This is function of t. Okay. So can anyone tell me what will be derivative of log sin t? 1 by sin t into cos t. Absolutely, very good, perfect answer. तो log of sin t का डेरिवेटिव होगा 1 by sin t into cos t. पर वो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, इनिशियल पार्ट है इसलिए. हाँ, log of sin t will be 1 by sin t into d by dt of sin t. ठीक है, एक एग्जांपल्स के लिए मैं स्टेप वाइज जाऊंगा, फिर हम स्किप करेंगे. log of sin t is 1 by sin t and d by dt of sin t कंपोजिट फंक्शन है. तो राइट डाउन, therefore dy by dt is nothing but equal to 1 by sin t and d by dt of sin t is nothing but cos t, and therefore cos t upon sin t, so that is nothing but cot t. t को ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ये cot है ना इधर. cos by sin is cot t. तो अभी हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? दिस इज, वी हैव गॉट dy by dt. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट dx by dt. ठीक है, तो चलो इसके बाद देखो. नाउ लेट्स कंसिडर y, सॉरी x. y हो गया. नाउ x. नाउ लेट्स कंसिडर x वाला पार्ट. तो व्हाट इज x? तो x इज नथिंग बट cos of log t. चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t एंड ट्राई टू फाइंड आउट dx by dt. हम कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग with respect to t. Therefore d by dt of x is equal to d by dt of cos of log t. Okay, chalo write down till here. Now tell me what will be derivative of cos of log t? Sin of log t into 1 by t. हाँ, माइनस साइन के, या करेक्ट.
So d by dt of x means it is nothing but dx by dt. तो cos of log t का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ log t into d by dt of log t. तो आप डायरेक्ट 1/t भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये स्टेप शो करना है आपको, इट इज नॉट कंपल्सरी. So therefore dx by dt is nothing but equal to minus sine of log t and d by dt of log t is nothing but 1/t. तो ये मैं अपॉन t लिख देता हूँ. इसका डेरिवेटिव क्या है? 1/t है, तो अपॉन t हो गया. तो dy by dt मिल गया, dx by dt मिल गया. ठीक है ना? तो चलो राइट डाउन. फाइनली now what do we do? So write down now dy by dx. तो ऐसे लिखो now. चलो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं. now dy by dx is nothing but equal to dy by dt upon dx by dt. ठीक है, this is how we get dy by dx. डिवाइड करो, पहले ऊपर न्यूमरेटर में dy by dt चाहिए, so this is dy by dt. So therefore लिखो dy by dx is further equal to, so what is dy by dt? dy by dt is nothing but cot t, and what is dx by dt? So dx by dt is minus sine of log t whole upon t. ऐसा आएगा. जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये t ऊपर चला जाएगा. So therefore what is the final answer in dy by dx students? So dy by dx is equal to minus t into cos t, sorry cot है ना, t into cot t minus t into cot t upon, in the denominator we will have sine of log t. यही हमारा फाइनल आंसर है. That's it. Problem is over. Please make a note of this. If any doubt, you can ask. Otherwise, the example is over. ठीक है, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्यों यूज करते हैं हम? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड आउट dy by dx डायरेक्टली. जैसे हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते थे, उनका अलग रूल था, उसमें हमें dy by dx डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली मिल जाता था. बट अभी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. क्यों ऐसा नहीं होता है? बिकॉज x एंड y दे आर फंक्शंस ऑफ सम पैरामीटर. तो t हो सकता है, थीटा हो सकता है, आगे चल के आएगा थीटा भी आएगा. तो वी डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम विथ रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, and then we use the rule of that parametric differentiation, and then we obtain dy by dx. ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है throughout this type 5. okay.